क्वांट इज अ वीक सेक्शन फॉर मेनी स्टूडेंट्स। क्वांट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और व्हेन आई टेल देम दैट हे योर जॉब इज टू रियली रिड्यूस द पेपर, क्वांट फॉर यू कैन नॉट बी अ 22 क्वेश्चन पेपर, especially if you are weak. You first need to shortlist which questions you want to solve so that you attack those questions. I thought that if I advise that, how about I show it to you that how do you shortlist those questions which make this journey simpler for you. Therefore, in this video, I will be taking a previous year CAT blindly. Blindly means what? That I would be walking into it blind without having solved it earlier. So I will select the QP in front of you, that which years, which slot should I be appearing for, and then I'll be spending the next 40 minutes attempting that paper like a student would. And you know the fact that yes, I am weak in quant, so my objective is that even if I could solve some 8 to 10 questions, I would have felt that okay, मैंने बचा लिया है, मैं 85 क्रॉस कर जाऊंगा. That is what I intend to do. Do watch this video completely. My objective is not to have seen the mock already and now I'm pretending to be that hey, you can solve this and CAT is very easy and look, this is so simple and that is so simple. See, I would make those videos as well, but for this video my objective is to give you a view of how frustrating the attempt could be for a student when you're weak. Watch this video and I'll see you at the other side. Thank you. Hi and welcome back. Now from this point onwards, this video is going to be uncut. Before I begin taking the mock or even selecting the mock, what I want to do is that I want to show you what I have in front of me. So for that, I'll quickly pick the camera up and I'll show you what I have over here in front of me. That is my laptop screen wherein I'll be playing the mock test. This is the iPad on which I will be scribbling. That is some water for mid-mock hydration, and apart from that I don't have anything else which I should not be having over here while I'm attempting the mock test. I'll put the camera back over here and here we go. Let me put that. Yeah, I think it's settled properly. Let me just adjust it a little bit. Fair. This is fine. Now what I will do is that I will start sharing my screen and I will show you my CL account. This is my CL account wherein I'll be appearing for this mock. I go inside this area and you can see that your favorite pre-MBA program, How to Be School, created by me, is not only available on my website, which is creatum.co, but now it is also available on Career Launcher. So you can enroll for it and start learning for your MBA, start preparing for your B school from right now itself. This is important. I'll go back to mock tests. I'll go here, I'll go to mocks. Now, as you can see that all of the previous year CAT exams have been uploaded as mock tests. Now, which of these should we be attempting? For that, just like the last one, I will go to this sheet. I hope you can see this sheet over here right now, and I will use the rand between function. The reason why we are using rand between is so that we can pick which of the mocks should we be appearing for between 21 to 24, and we hit enter and we get 2023, which means I will be appearing for CAT 2023. Now, which of the slots should I be appearing for? We will again use rand between function. Now, for that, I would go back here again and I would do rand between slots 1, 2, 3. Let's select which slot should I be going for. Okay, and here we go. We get slot number 2. So I will be appearing for CAT 23 slot number 2. I get back to my mock tests over here. I hope you can see the screen, and CAT 2023 slot number 2, this is the one of which the quant section is the one which we will be appearing for. Now I will quickly click here. Now you might not be able to see that new screen because for that I will have to change my screen share. Let me do that quickly. Where is that window? CL online test. Okay, there it is. I have changed the screen to that one and I believe now you can see it. Let me readjust the size of this so that you can see it all well. And here we are. Yes, I believe now you can see it good. You can. Now let's read the entire set of instructions. You can read this and I would click ready to begin. I am ready to begin. Okay, here we are. Here is the mock test that we have in front of us. 40 minutes on the clock, and I hope you can also see my iPad wherein I'll be scribbling. That's great. I have the pen. Now I'll quickly choose which questions I need to start off with. Okay, and here we are. Question number 1: for any natural numbers m, n, k,
such that k divides both must be a common divisor. Number systems is weak. Number systems मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं question number 1 is not. So right now what I will do is that I would want to quickly categorize the questions in round 1 and round 2. That's my entire aim. So question number 1 I am not very sure about because divisor and ये सब मुझे नहीं आता है. Question number 2 क्या है? Any non-zero real numbers x, y, z such that y is not equal to 3 and satisfy the condition. So inequalities is not a very comfortable area for me. I'll go to question number 3. Sum of all possible values of x satisfying the equation. All possible values, sum of all possible value of x, roots of the equation, तो minus b by a का कुछ शायद फंडा होगा. I can try this, but I would put question number 3 as my round 2 question. So on my sheet, I'll quickly show you my sheet also. I'm making round 1 and round 2. I will not keep on switching back to this again and again, but just for the start, I am saying that, okay, question number 3 is my round 2 question. That's that. I'll get back to this. Question number 4. लेट ए बी एम बी नेचुरल नंबर्स, ये मैं कर लूँगा 40, बिकॉज ये क्यों कर लूँगा मैं, 144 को मैं 12 में का स्क्वायर है तो उसको मैं 2 और 3 में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी माई राउंड 1 क्वेश्चन. ठीक है, फटाफट करते हैं. सम पॉजिटिव रियल नंबर एक्स इफ लॉग. हाँ, ये मैं लॉग है, लॉग आता है मुझे, बट नॉट वेरी comfortable about log. I would want to solve it in round 2. I would put question 5 as round 2 question. Okay. 6 क्या है? Let k be the largest. I hope you can see my screen. Okay. Let the largest integer be equation has no real roots. If y is the positive real least possible value of k, my यार option होते. Okay. Had there been options in this, I might have been more comfortable, but I might not want to select this right now. So up till now, I have selected only 3, which is 4, 3, and 5. Okay, I'll go back to my screen. I hope you can see my screen. Okay, the number of positive integers less than 50, exactly 2 distinct factors other than 1. Not very comfortable. Okay, let's see. Ravi is driving at a speed of 40 kilometer. Should drive same direction में है. Ashok is driving same road opposite direction. वॉट स्पीड विजय शुड ड्राइव. ठीक है, ये TSD है, ये मैं कर लूंगा. ये अराउंड 1 है. सी अगेन फॉर मी माई स्ट्रेंथ एरियाज आर सम एरियाज ऑफ अरिथमेटिक, सम एरियाज ऑफ algebra, and also geometry. I'll go to question number 9. पाइप CNC fill pipes, drain pipe. ये टाइम एंड वर्क है. पाइप B empties the tank 1 hour less. नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं हूँ. Minu purchases pair of glasses at 1,000. So we have been given a base, sells it to Kannu 20% profit. Profit loss. Minu sells the same glasses to her. ठीक है, ये मैं कर लूँगा. ये round 1 है मेरे लिए. Question number 10 is round 1. Quickly आगे चलते हैं. Precious stone is directly proportional to its weight. तो K W square करके बना के इसका has a weight of 18. Breaks it into 4. ये यार डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज. ठीक है, ये राउंड 2 में मैं ट्राई कर लूंगा. क्वेश्चन 11 गोज टू राउंड 2 क्विकली फॉर मी. आई विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस नाउ. ऑन सेलेक्टिंग 20% employees manufacturing department, the total salary obtained by manufacturing employees is 1/6 of the total salary. हाँ, ये रेशियो है, कुछ करके मैं कर लूंगा. क्वेश्चन 12 is also my round 2 questions. 13th borrows 2 lakh at interest rate of 8% per annum. हाँ, ये राउंड 1 क्वेश्चन है. 13 इजी है. अरिथमेटिक 14 क्या है? सर्टेन अमाउंट इज रिसीव्ड अमंग n पर्सन्स, 2% रिसीव रिमेनिंग. ये मैं राउंड 2 में ट्राई करूंगा. 14 क्विकली. 15 चैन बॉट सर्टेन नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स एट 2000 पर पीस. ये राउंड 2 में ट्राई करूंगा बिकॉज दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस. राउंड 2 15. ठीक है, 16 चलते हैं. A container has 40 liters of milk. 4 are removed from a container, replaced by 4 liters of water. This process is repeated very smallest number of times. नहीं, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा. 16 नहीं कर पाऊंगा. 17 ट्रायंगल ज्योमेट्री है, ये मैं कर लूंगा. 17 राउंड 1 है मेरे लिए. ज्योमेट्री है, मुझे थोड़ा आता है इसमें. triangle है, one of the sides of the triangle is the diameter, which means it is going to be simple. ये मुझे कॉन्फिडेंस है, कर लूंगा. इन अ ट्राइंगल
ज्योमेट्री है, ये भी मैं कर सकता हूँ। इनर ट्राइंगल ABCD, 2 पॉइंट्स BQCR APQ, ये मैं राउंड 2 में आई पुट, बिकॉज अभी मुझे समझ नहीं ऐसी। अगेन फॉर दिस नाउ आई विल हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर, सो आई कांट बी सो श्योर अबाउट इट। 19 देख लेते हैं, मॉड्यूलस में मैं ठीक नहीं हूँ। 20 देख लेते हैं, नहीं ये मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे ए क्यूब और बी क्यूब वाली जो वो होती है आइडेंटिटीज, वो याद नहीं है। APGP है, ये मैं कर सकता हूँ, ये राउंड 2 है मेरे लिए। एंड APGP है, ये भी राउंड 2 है। नाउ इफ यू क्विकली सी माई स्क्रीन, दिस इज वॉट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर माई सेल्फ, राउंड 1 एंड राउंड 2। आई विल क्विकली स्टार्ट ऑफ विद दिस वन, राउंड 1 फोर्थ क्वेश्चन। फटाफट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। अब टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया, अब 33 मिनट रह गए, मगर सवाल भी बहुत ज़्यादा है नहीं। सी इसका क्या हुआ, इसका जो ये जो हमने करा है, इसका सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है दैट नाउ माय एंटायर क्वांट इज ओनली दिस मेनी क्वेश्चंस, दैट्स इट, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 में से मैंने अगर 10-11 सवाल भी ठीक से सॉल्व कर लिए, मेरा काम हो जाएगा। दैट्स दैट। आई विल गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is this. Okay, I will go to this. So it is saying that AM and BN है, A is greater to 1, B is greater to 1. It is represented as 144 power 145, largest possible value of n minus m. अब स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। बेसिकली ये फंडा है। अब वो कह रहे हैं कि इसको बेसिकली यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू 2 थिंग्स। तो मैं इसको कर देता हूँ 144 इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 144, ठीक है। तो एक 12 कितना हुआ, 3 इंटू 4, 4 मतलब ये इंटू 3 इंटू 4, ये मैं स्टेप एक स्किप कर सकता था, बट चलो आपको समझाने के लिए एक मैंने ऐड कर दिया। 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, 145, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 3, 145 इंटू 2 कितना होता है, को मैथ कितनी वीक है, कैसे सॉल्व करना पड़ता है मुझे। 290 एंड जुकाम हो रखा है, सॉरी, 290 18 580, 2 की पावर 580। अब ये तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ए। तो यार एक बात मुझे समझ में आती है यहाँ पे, इफ यू सी दिस क्वेश्चन अगेन, कि ए और बी हैज टू बी 2 and 3 समवेयर, हैज टू बी 2 and 3 बिकॉज what is it that you can see on your screen, ठीक है। A and B has to be 2 and 3 because A is greater than 1. तो if I were to see n minus n, इस केस में क्या हुआ, n minus n इस केस में हुआ आपका 580 minus 290 which is equal to 290. and options क्या है, options है 290 and 290 is one of the options, but is it the largest possible value? लार्जेस्ट, ये तो ऑप्शन में है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब सी एक और चीज है, 580 भी दिया हुआ है ऑप्शन। सी द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड ओवर हियर इज बिकॉज 580 भी यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन, एंड व्हाई आई स्टॉप्ड इज दैट बिकॉज 580 यहाँ पे भी है। सो दिस इज मेकिंग मी थिंक दैट इज इट समथिंग रिलेटेड टू 580। आई वुड नॉट हैव स्टॉप्ड हियर। What should I do? Wait a minute. So largest is, so 580 is one of the options. ओके 290 से ज्यादा के क्या ऑप्शन है, सिर्फ दो हैं। आई हैव टू चेक फॉर 580 एंड 579। 579 कैसे होगा, वेट अ मिनट, 579 मतलब कि अगर ये n है ये m है, तो एक पॉसिबल वैल्यू ये है। क्या अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं n को और इंक्रीज कर सकता हूं, ऐसा कोई चांस है, नहीं कर सकता हूं बिकॉज 2 है। m को क्या मैं कम कर सकता हूं, 3 को मैं फर्दर सब फैक्टराइज कर सकता हूं, बट सब नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नॉट। मैं अगर मान लीजिए इसको एक मान लेता हूं, हाँ, आई थिंक दिस इज द वे टू सॉल्व इट, दिस इज द वे टू सॉल्व इट। सो आई हैव कंसिडर्ड दिस टू बी नाउ वट एवर ए और वट एवर इट इज बी, जो भी है, हाँ, तो ठीक है, देन इट शुड बी 580 दिस माइनस 1 बिकॉज नाउ आई हैव अज्यूम्ड द एंटायर थिंग। 580 माइनस 1 हो गया तो ये 579 हो गया। ये मैं पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा हूँ सॉल्व। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जा रहा हूँ वापस, 579 seems to be option, but is there a way it could still be 580? This cannot be 0. See again, the problem is this cannot be 0. Can it be? It can't be 0. 579 has to be it then. 579 has to be it. I have to have faith on this because there is a way wherein it can be 579. I'll mark 579 and I will move ahead. I'll move ahead.
Which is the next question which I was supposed to solve? Wait a minute. Fourth is done. एट्थ क्या है? एट्थ देखते हैं हम. एट्थ पे आते हैं फटाफट. एट्थ क्या है? एट्थ देख लेते हैं. ओके, एट्थ में कह रहे हैं ये कि रवि इज ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 40. एक एक लाइन बना लेते हैं. रवि इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 kmph. Vijay is 54 meters behind. Vijay is 40 meters behind. 54 meters behind Ravi. Driving in the same direction as Ravi. ठीक है, तो direction is same. Speed नहीं दी हुई है. Ashok is driving along the same road, opposite direction at a speed of 50. कौन है ये? अशोक. अशोक opposite कितनी speed से? 50. is 225 meters away. Okay. At what speed is Vijay should drive so that all three cross? ठीक है, easy है. अब ये तो ये है. अब वो कह रहे हैं कि रवि एंड अशोक will meet somewhere here, and at what speed should Vijay drive from here so that even he is able to reach at this spot when they are here. So it is pretty simple. Basically the time has to be the same. So time is equal to speed is equal to distance upon time ना. हाँ, तो distance upon speed. Distance is so ये मैंने कर लिया assume x, ये 225 minus x, so 225 distance upon speed 40 is equal to distance upon speed. So 225 into 5 कितना होगा फटाफट? I hope you can see my screen. Yes, you can. 525, 10, 12, 5 to 10, 1, 1. Okay, so this is 11250, 50x, 40x, 90x, 11250, 0 कटा, x is equal to 11, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9192 18 क्या कर रहा हूँ यार मैं? इतना स्लो कैसे हो गया? फ्रस्ट्रेटिंग. 5 ना, 125. हाँ, 125 x इज इक्वल टू नहीं, हाँ, x इज इक्वल टू 125. सो दिस इज 125. गॉड, exposing my weak math. So this is 100. This is 100. So now I have to check. ये हो गया कि विजय, इनकी स्पीड s है, तो ये इनको डिस्टेंस कवर करना है 154 बाय s इज इक्वल टू, रवि से अज्यूम कर लेते हैं, रवि हैज टू कवर 100 at 40. One 54 16 5 4s are 20 21 4s are 4 6 61.6 is the answer भाई. 61.6 है ऑप्शंस में. हाँ, डन. ये रहा 61.6. टाइम कितना है? 25 मिनट रह गए. 2 क्वेश्चन कर पाया हूँ. ठीक है, बट ज़्यादा मुझे तो करने भी नहीं है सॉल्व, तो क्या ही दिक्कत है. 8 भी हो गया. चलो अब देखते हैं 10th. 10th क्या क्वेश्चन है? 10th क्वेश्चन क्या है भैया? 10th क्वेश्चन जल्दी देख लो. मिन्नू परचेजेस. हाँ, ये तो इजी होगा. ये तो 2 मिनट का काम होना चाहिए आइडियली, अनलेस देयर इज सम, मतलब कि कोई पेचीदगी है. तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू माय स्क्रीन ओनली सो दैट आई कैन क्विकली शो यू. So it says that Minnu purchases a pair of glasses at ₹1,000. I'll be speaking it so that you can see it. And sells to Kannu at 20% profit. 20% profit मतलब इसको बेचा इनने 1200 का. ठीक है जी, बेच दिया. Then Kannu sells it back to Minnu at 20% profit था. अब वो कह रही है 20% लॉस पे वापस सेल करा है. तो 20% ऑफ दिस, इसका हुआ 20% 240. तो -240 करना है. 200 गया तो 1000,
960 में वापस ले लिया, 960 का यहाँ बिका, ठीक है, 20% लॉस पे है। अब वो कह रहे हैं फाइनली मिन्नू सेल्स द सेम पेयर ग्लासेस टू टी इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मिन्नू फ्रॉम ऑल आर ट्रांजैक्शन इज 500 देन द परसेंट, हाँ ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय मिन्नू सोल्ड द पेयर लास्ट वाले ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो 50, अब ठीक है भाई दिया। अब देखो टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 500, तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था उनको 200, ये दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इनको जब इन्होंने बेचा है टी को, इन्होंने जब इनको सेल करा है तो इधर प्रॉफिट हुआ है इनको, पक्की बात है ₹300 का, तो मतलब इनको बेचा है इन्होंने कितने रुपए का, इतने का, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस पे हम कह रहे हैं कि क्या सवाल है, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय मिन्नू वेंचर, हाँ परसेंटेज, ठीक है, सो सिंपल, परसेंटेज प्रॉफिट इज 300/960, ये मतलब कि होगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 33 समथिंग कुछ होगा, 33। ऑप्शंस क्या है मेरे पास, ऑप्शंस देखते हैं, 35 है और है 1, 35 31, तो एक सेकेंड आई जस्ट नीड टू चेक एक चीज़, ये 33 से ज़्यादा होगा कि होगा कम, अगर ये 900 होता तो होता एग्जैक्टली 33, ये बिकॉज ये 900 से ज़्यादा है, दिस वुड बी स्मॉलर देन 33, देयर फोर द आंसर इज 31 वाला जो भी ऑप्शन है, 31 वाला ऑप्शन क्या है, 31.25, दिस इज माई आंसर, आई विल नॉट रीडू दिस, नॉट माई थिंग नाउ। लेट मी गो बैक टू द नेक्स्ट वन, कौन सा करना था मुझे, ये है 10th भी हो गया है मुझसे, 13th देख लेते हैं एक बार। गुड है, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आई नीड टू हैव फेथ इन दिस प्रोसेस कि मैंने यार इनिशियली आई हैड स्कैन्ड इट, आई हैड 20 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू लुक एट इज क्वेश्चन 13 क्विकली। हाँ ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, क्विकली वापस करते हैं। ओके, अनिल बोरोज 2 लाख एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि 4% द फर्स्ट लाख, ही रिपेज इतना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन क्लोजेस द लोन बाय पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट 30, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो 2 लाख है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट, 2 लाख है, कलर चेंज करें पेन का, 2 लाख है, ये 2 लाख हुए, कितने हुए, ठीक है, 2 लाख है इंटू 4% इंटू 4%, ठीक है, ये कितने पैसे हुए। अब मैं इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा मुझे द कैलकुलेटर, कोई शर्माने की बात नहीं है, आई विल नॉट से टू यू कि यार ये कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाता है, भाई नहीं हो रहा तो करो, ये है इसलिए 104 1.04, ओके, कितना हुआ, 216320। अब वो कह रहे हैं मैंने कितना पे कर दिया है, यहाँ देख लो, ही रिपेज 1032 माइनस 10320, कितने बचे, 0.00602। अब देख लो यार फटाफट से मेरा स्क्रीन देख लो, इतना अब रह गया है, तो इंटरेस्ट पहले यहाँ पे जो हुआ अक्रू हुआ वो इतना हुआ था, अक्रू 16,320, एक ये इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। अब इस सम पे आपके वी हैव 2 साल और है इस पे, थर्ड ईयर है ना, तो मतलब इस सम पे है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापस तो हैव टू डू 206 इंटू 104 इंटू 104, एक साल ये हो गया, एक साल इंटू 1.04 इंटू 1.04, 2 साल ये हो गए, ठीक है। नाउ if this I would have to again go back to the calculator, I hope you can see the screen, yes you can। टाइम कितना बचा है अभी, I can't see that because the calculator is in front of it, but what I'll do is that ones tens hundreds thousand, हाँ ठीक है, अब करते हैं इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 और एक लास्ट टाइम और इंटू 1.04, ठीक है जी, ये कितना हुआ 240,990.83 सॉरी 863। अब ये कितने पे इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वैसे हमारा, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वापस आ जाओ यहाँ पे, फ्रॉम 206,000, इसको माइनस कर देते हैं फटाफट, वापस से यहाँ आते हैं, माइनस 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 206,123, कितना हुआ 3499,
एंड ऊपर एक हमारा ऑलरेडी आया हुआ था सम, ये वाला, इसके साथ ऐड कर देते हैं इसको फटाफट, ठीक है, प्लस 16320 551513 है, ये रहा, ये वाला ऑप्शन है. आई होप यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. यस यू कैन. फोर्थ ऑप्शन, दैट्स माय आंसर. आई वुड नॉट थिंक अबाउट इट ट्वाइस. आई वुड क्लोज द कैलसी एंड चेक. 20 मिनट्स है मेरे पास, 20 मिनट्स है, जल्दी कर लिया मैंने, ठीक कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं. अब कौन सा करना है मुझे, अब वापस अगर मैं आऊँ यहाँ पे, ये हो गया है मेरा 13th क्वेश्चन भी हो गया. वेरी गुड. आई एम थ्रू माई राउंड वन वेरी क्विकली. 17 में आई होप समय ना लगे. 17 क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से. 17 क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, दिस इज माई एरिया ऑफ स्टडी, दिस इज माई एरिया. आई विल गो बैक टू माई स्क्रीन नाउ, सॉरी माई iPad now, and it says, I'll go back to now the screen. A triangle is drawn with its vertices on the circle such that one. हाँ ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट. I'll show it to you afterwards. I'll first make it. The diameter is AB, okay, and C is one point wherein there is this triangle. तो अब अगर यहाँ पे आ जाओ, अब ये C जो है, because this line AB is the diameter, this has to be a right angle. That is always true. That's that. And the other two sides are in the ratios. I hope you can see the screen. No, you can't. I'm sorry. Other two are in the ratios A and B. तो जो other two sides हैं, they are in the ratios of A and B. And the radius is R. Then find the area of the triangle. ठीक है, ये हो गया मान लो AX, ये हो गया BX. अब एरिया निकाल ले, तो एरिया इज व्हाट? एरिया इज इक्वल टू हाफ, मतलब कि बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया. एंड एरिया में ऑप्शंस क्या दिए, रुको, एवरीथिंग इज इन A, B एंड R. तो x का कोई यहाँ, ठीक है, ओके, तो A, B एंड R. तो मतलब कि जो ये लाइन हुई, ये कितनी होगी, एज इन ये x नहीं है, x तो वो है. दिस इज इक्वल टू, इफ वी अप्लाई पाइथागोरस, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AX होल स्क्वायर प्लस BX होल स्क्वायर. दैट इज क्लियर टू अस. सो AB इज इक्वल टू, मैं x को अगर ले लूँ आउटसाइड, बिकॉज अंडर रूट हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, अब AB, अब मुझे R में लाना है, तो AB इज इक्वल टू 2R. x प्लस एक स्टेप में यहाँ स्किप कर सकता था, बट फॉर योर सेक आई एम शोइंग दैट R इज नहीं, सो x इज इक्वल टू, x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2R A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो फार सो गुड, सो फार सो गुड. बट ठीक है, x को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मतलब हाफ इंटू A इंटू B इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, ये यहाँ हो गया कट, तो इट वुड बी इक्वल टू 2ABR स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ऐसा कोई होना चाहिए ऑप्शन. मेरे पास ऑप्शन है 2ABR स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना. हाँ यही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस. Save and next. I have solved how many questions? 5 questions have I solved, have I? Let me go back to my screen. Let me check कितने मैंने solve कर लिए हैं यहाँ पे. I have solved 5 questions. Now I'll go to my round 2 questions. Good. I have time. I have 16 minutes. कौन सा करें अब questions है 3, 5, 11, 12. 3, 5, 11, 12 में से कोई उठाते हैं फटाफट. As per what we think we can do. 3 देख लेते हैं क्या है. Not very comfortable. I'll come back to this. अभी मैं इस पे comfortable हूँ. 5 है तो फट गई मेरी राउंड 2 आते, तो कंफर्टेबल इसमें भी नहीं हूँ. ओके 11 देख लेते हैं. हाँ वेट वाला फंडा है, कर सकते हैं. और कहता है 12 में से किसी में शुरू करते हैं. 11 कर लेते हैं. आई थिंक आई कैन डू दिस. 11 कर लेते हैं because this is arithmetic, तो ये थोड़ा सिंपलर है. I hope you can see my screen. Yes, the price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight. तो मैं कह लेता हूँ price is equal to k weight square. k weight square एक इक्वेशन टाइप फॉर्म कर लिया हमने. k w square. Sita has a precious stone weighing 18 units. If she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, ठीक है, then the difference between the highest and the lowest possible values, the highest possible value of the total price of the 4 pieces. मतलब चारों की highest price क्या होगी और एक केस में चारों की lowest possible price क्या होगी, उसका डिफरेंस दिया हुआ है 2,88,000.
तो मुझे दो सिनेरियोज बनाने हैं। एक में वो ब्रेक ऐसे हुआ कि हाईएस्ट प्राइस बन गया, हाँ ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ क्या हुआ ये। तो 18 है ना टोटल सब, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब वापिस आओ फटाफट। ये कह रहे हैं अब एक स्टोन है हमारे पास 18 ग्राम उसका है। अब एक केस है हाईएस्ट वाला कि हाईएस्ट कब होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अमाउंट हाईएस्ट होगा तब व्हेन वन वन ऑफ द फोर चंक्स हैज अ वेरी हाई प्राइस। मतलब मैं कहता हूं एक हो गया 1 + 2 + 3 बिकॉज दे कांट बी द सेम, अदरवाइज आई वुड हैव डन 1 1 1 एंड वन हाईएस्ट। So 1 + 2 + 3 we have 6. 6 minus 18 is 12. This has to be a case. That means that the total price, I have to still find k, by the way. I have to find k obviously. So I will take the price. Now the price of such a thing is k 1 square, which is 1, 4k, 9k, 144k। एक प्राइस ये हो गया। अब इसका सम कर लो फटाफट। 144 + 9 153, 153 + 4 157 + 1 158, 158 के तो एक प्राइस हो गया हाईएस्ट केस में। लोएस्ट केस देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी माई पैड। यू कैन। लोएस्ट तब होगा यार जब, लोएस्ट के लिए ना ये नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा, तो लोएस्ट लोएस्ट होंगे मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। 18/4 कितना हुआ, 4 × 4 is 16, 16 तो 4 के पास का वैल्यू है। तो 4 + 5 + 6 + 7 ऐसा कुछ होगा। ये कितना सम हुआ, ये हो गया इक्वल टू द 10, 10 + 12 22। ये तो ज़्यादा हो गया। एक और पॉसिबल ये नहीं है। 3 + 4 + 5 + 6 ये हो गया 10, ये हो गया 18। ये है 18, ठीक है ये है फिर मान के चलते ये यही होगा यार, और कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, वहाँ 8 बढ़ा दिया, वो 8 का स्क्वायर फिर स्क्वायर बन जाएगा, वो बहुत बड़ा सम बन जाएगा। सी अगेन वी आर नॉट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर नॉट ऑपरेटिंग with just these numbers. You have to square these numbers. Now I'm saying price is equal to, the lowest possible price is equal to 3 का square is 9k, 16k, 25k, 36k। अब इसको सम करो भाई, तो लंबा चक्कर है। ओके 36 + 9 is equal to 45, 45 हुआ ना, 45 + 25 is equal to 45 + 25 is equal to 70, 70 हुआ, 70 हुआ, ठीक है। 70 + 16 86, 86 के। अब ये कह रहे हैं 158 - 86 के इज इक्वल टू कितनी प्राइस दी हुई है, 288000। ठीक है वापस आते हैं। आई होप यू कैन सी, या 186 कितना हुआ, 218 7 ना 772, 72 के इज इक्वल टू, हाँ अब नाउ आई कैन सॉल्व इट बिकॉज ये मतलब ये इसका वो है, मल्टीपल है। के इज इक्वल टू, इसमें फटाफट कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। मैथ वीक है, मैथ बहुत वीक है, मैथ बहुत वीक है भैया, मैथ बहुत वीक है। अंग्रेजी जितनी अच्छी है उतनी मैथ बर्बाद है मेरी। डिवाइड बाय 72, 4000, वेरी गुड। के इज इक्वल टू 4000। वापिस आइए, वापिस आइए। क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ क्या रहे थे, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग। Then the price of the original precious stone, very good, done, solved. Price is equal to 4000 into 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कुछ होता है, 324 होता है शायद। आप कैलकुलेटर कर रहे हैं तो कर लेते हैं, वो सब जब कर ही रहे हैं तो 324 होता है, अगर जहाँ तक सही याद है मुझे, इंटू 18। अब देखो इसी से ना स्पीड ना स्लो हो जाती है अगर स्क्वायर याद नहीं है। हाँ तो 324 इंटू 4000 कर लेते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ के 4000, 1296। ये रहा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज माई आंसर। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन सी द स्क्रीन। सेव नेक्स्ट। ये कौन सा करा था मैंने, ये करा था क्वेश्चन नंबर 11। आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स लेफ्ट, तो विच मीन्स आई हैव सॉल्व क्वेश्चन 11 फ्रॉम राउंड 2। अब है 12 14 15 18, 12 14 15 18। 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, आगे क्या है, 21 है, 21 है, 22 है यार। 18 ट्राई करते हैं। कितने हो गए अभी, 1 2, अभी 6 करे मैंने। 18 ट्राई करते हैं, 18 ट्राई करते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री इज सीम्स टू बी माई
एरिया। आई हैव 9 मिनट्स, समथिंग लाइक 9 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, दो एक सवाल निकाल सकते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहे हैं अब। 18 करते हैं। इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाओ भाई, फटाफट 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 फटाफट। ए बी सी डी। अभी क्या दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, ठीक चीज दिख रही है। अभी फर्स्ट आई विल क्रिएट द थिंग, देन यू विल सी इट। ए बी इज इक्वल टू 9। आई हैव टू फाइंड अ वे दैट आई डोंट हैव टू लाइक स्विच इट। ये बार बार स्विचिंग करना मेरे से हो नहीं रहा है, बट आई हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ वे फॉर दैट। बी सी इज इक्वल टू सी। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी, ठीक है। पी है, क्यू है, बी सी पे 2 पॉइंट्स है, सच दैट एरियाज ऑफ फिगर ए पी बी, ठीक है, एंड ए पी क्यू एंड ए क्यू सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ये एरिया और टोटल एरिया ए क्यू सी डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ द एरिया ऑफ AQCD is 4 times area of APB, then find BP। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। नाउ आई हैव टू शो यू द स्क्रीन एंड एक्सप्लेन। तो द एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू से x, and they are saying that this area is 4 times the area. If you can see this statement, it is 4 times the area. That means this is 4x. And because all of these areas are in a GP, which is where the hint is, this has to be 2x. ठीक है, तो अब रह क्या गया है? अब कुछ नहीं रह गया। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है? देन BP QC पे एरिया कितना होता है ना, हाफ बेस to height। हाँ, तो the area also, sorry, the lengths also have to be in the same। 1:2:4 ये ऑप्शन है। आई थिंक इट इज 1:2:4। सेम है नेक्स्ट, ठीक है, आई थिंक यही आंसर है। 1:2:4 होगा ना, बिकॉज लेंथ तो सबके से ठीक है। लेट्स प्ले इट लाइक दैट। कितना टाइम रह गया मेरे पास? 7 मिनट रह गए। कुछ कुछ तो कर सकते हैं। क्वेश्चंस कौन से कर सकता हूँ मैं? ये मैंने कौन सा सॉल्व करा है लास्ट अभी? एनी आइडिया? 18 कर लिया है, ठीक है। कितने हो गए? 5 6 7, 7 ही का यार, 10 तो कर लेता। 21 कौन सा है? वापस चलो। 21 कौन सा है? हाँ ये मैं कर लूंगा। ये मैं कर लूंगा। 21 कर लूंगा। ट्राई मारते हैं। 21 कर लेते हैं स्क्रीन पे। ओके, पहले ये देख लो आप। दो सीरीज दी हुई थी इसमें, A1 B2 B3 AP। सच आर कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर्स। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज आर प्राइम नंबर, ठीक है। ओके ओके। A19 B19, A5 is equal to B9, B2 is equal to 0, A11। तो भाई देखो, एक सेकेंड यार। A11 ब्लैक पेन से कर लेते हैं। A1 n-1 इंटू D, तो D1 प्लस 10D1। ये तो मुझे ये निकालना है। इसके लिए मुझे जानना क्या होगा? मुझे A1 जानना है। तो A5 इज इक्वल, अच्छा एक और चीज भी तो दी हुई है। A5 इज इक्वल, अच्छा सॉरी, आई थिंक यू कुड नॉट सी माई स्क्रीन। तो ये मैंने, दिस इज वॉट आई हैव टू फाइंड। अब आगे आ जाओ। A5 इज इक्वल टू, नहीं, A5 इज इक्वल टू B9। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D1 इज इक्वल टू B1 प्लस 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 8D2। ओके ओके ओके। तो हाउ डू आई गेट टू दिस? एंड A19 इज इक्वल टू B19। A19 इज इक्वल टू A, हाँ ठीक है। आई हैव 2 इक्वेशंस ना, आई कैन सॉल्व इट। हाउ मच इज द टाइम लेफ्ट? 5 मिनट्स लेफ्ट। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। इस वाले से बनेगी A19, तो 18D1 इज इक्वल टू B1 प्लस 18D2, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशंस हैं। वापस आ जाओ स्क्रीन पे। अब ये 2 इक्वेशंस हैं। आई होप यू कैन सी दिस। हाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना। मैं ये कर देता हूँ। ये गया,
ये कट गया, ये माइनस, ये माइनस, -12D -10D। तो एक ही तो पॉसिबिलिटी है इसमें, देन डी हैज टू बी, क्या करा है, कुछ कुछ मैंने कुछ गलत करा है। एक सेकेंड, प्राइम कैसे आया, बिकॉज मैं यहाँ पे, ये प्राइम तो हो ही नहीं सकता, प्राइम हो नहीं सकता। A5, हाँ A5D9, ठीक है, ठीक है। B2 इज इक्वल टू जीरो, B2 जीरो है, B2 जीरो मतलब कि B2, हाँ ये भी है ना, B2 इज इक्वल टू B1 प्लस D2। यार एक मिनट ना, तो B1 इज इक्वल टू D2। ओ वेट, क्या कर, नहीं 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 नहीं, B1 is equal to D2, what is it that you can see, माइनस D2, तो D2 बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओह शिट, टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा, 3 मिनट बचे ये, हाँ ठीक है, दिस दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन, आई कैन क्लियरली सी इट, दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन। यार पता है फंस का रहा हूँ, आई टेल यू। इस केस में D1 इज इक्वल टू 5 एंड D2 इज इक्वल टू 6, मतलब मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये 6 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है, बिकॉज यहाँ लिखा है कि बोथ आर प्राइम नंबर्स, you know that this is not right, which is okay. So which means if I come back to this, what am I doing wrong? What am I doing wrong? I have to go back to that. Wait a minute, let me see. भाई common differences are prime numbers A5 B9 A19 B, यार मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, let me, okay, A5 is equal to, वापस आ जाओ यहाँ पे, A5 is equal to A1 plus 4D1 is equal to B9, B1 प्लस 8D2, ये भी सही है, एंड 19 B19 A1 प्लस 18D1 B1 plus 18D2। Now when I subtract these two, this goes इस 18 minus 4 कितना होता है यार, 14 होता, ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओह damn dude, no wonder I'm so this is 7, solved, this is solved. Now the only way it can happen is when D1 is equal to 5, D2 is equal to 7, that is the only way that this equation is true, which means I have to quickly find A11, A11 is A1 निकाल लो भाई, कहाँ से निकालोगे आप, फटाफट डालो इसको इक्वेशन में। D2 कितना है, B1 आ गया, B1 इज इक्वल टू -7, भाई ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, कैन यू सी द स्क्रीन, 1 मिनट बचा है। तो A1 इज इक्वल A1 प्लस 4D1, शिट मिस्ड डूड, so much time waste, plus 8D2 7 8s are क्या गलत कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, तो फिर एक से, हाँ ठीक है, ठीक तो है, ठीक तो है, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम तो 30 सेकेंड्स यार, बहुत गया, मैं गया 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 गया, वापस आओ पैड पे, 54 थोड़ा होते, 56 होता है ना, 56 तो माइनस है 49, A1 इज इक्वल टू, एंड A1 इज इक्वल 449 माइनस 4D1, 4 इंटू 5 20, A1 इज इक्वल टू 29,
तो A11 is equal to 29 plus 10 D1 plus 10 50 is equal to 79 79 फटाफट 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 शिट मॉक सबमिट हो गया शिट टोटल स्कोर 17 ओह सो बैड ठीक है इसमें 70 आया है क्या 8 में आ जाता कोई 80 85 हाँ 85 तो क्रॉस कर ही जाता यू कैन चेक दिस कि कौन सा दिया था मैंने 20 आई होप यू कैन सी द स्क्रीन dude if you see this is one sheer stupidity in calculation. I wrote this as 12D. मैंने 18 में से 4 हटाया मैंने 12 assume कर लिया उस वजह से मेरी क्या कहानी हुई है you can see that I feel exposed. I'll tell you one more thing. I'll tell you my raw feelings at this point of time. I'll show you my screen again. I have scored a 17 which एक कहीं कुछ गलत हुआ है क्या मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं बाय द वे लेट मी चेक मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं आई हैव अटेम्प्टेड 1 2 3 4 I see the screen right now 1 2 3 4 5 6 7 I have attempted I should have scored 21 should I 7 I have attempted I should have scored 21 तो एक मेरा गलत भी हुआ है ओह एक मेरा गलत भी हुआ है कहीं ना कहीं something somewhere has gone wrong we'll see which okay we can check it over here why not question wise analysis नहीं question wise नहीं solutions हाँ ये मेरा गलत हुआ है 18th कुछ सोल्यूशन होगा इसका आई होप यू कैन सी द स्क्रीन ठीक है कुछ होगा अच्छा इसमें मैंने कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं इसमें मेरा ऑप्शन था क्या माय फाइनल आंसर वाज 79 या 79 वाज द आंसर 79 was the answer correct answer was option number 2 79 and I had just solved it at the last if you see this yeah, 79 if you see this now 79 was my answer which I had solved but I had made a stupid mistake of calculation my dear friends anyways that was what it is that is what it is I'll go back to my scorecard so that you can see it that is what it is I'll go back to my face my dear friends this was quite an experience I do feel a little weirded out by this because of how weak I am in quant yet I want you to tell me in the comments what have you learned from it apart from the fact that even the experts the so-called experts are not the ultimate experts of it that is quite a thing I did not want this to be a planned live attempt and me trying to having it's a very simple thing to do I have seen the entire questions this thing already मैंने उनको solve कर लिया and now I'm making a video about it that hey you know what it is easy cat is very easy and you can do it and now see how quickly I could solve it see that's a very simple way for me to do it and I will still make those videos also by the way I'll make those videos also but for this one the agenda is different the agenda is to give you a view into that hey attempting blind when you're weak in it could have problems so yes I've scored not so much not as much as I would have wanted it to be but I hope that you liked it let me know in the comments what do you feel about it thanks a lot and goodbye